Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So this video is the continuation of the last video in which we studied the membrane potential. So in the last video we studied the resting membrane potential, the causes of resting membrane potential, and we discussed about the phases of action potential. Now to rewind, what is action potential? These are brief sequence of changes occurring in the nerve fiber or the muscle fiber in response to the excitation. So I hope you remember this graph. This is the graph showing the action potential in a nerve fiber where resting membrane potential is of minus 70 millivolt. So we discussed about the phases. The first phase is is of stimulus artifact, which is the point where stimulus has been applied for the excitation of the nerve fiber. Then the second is the isoelectric period, that is the latent period, that is the time taken for the stimulus to reach and produce the response. Then phase 3 is the depolarization, which indicates the reversal in polarity, excitation of the nerve fiber, and the polarity of the nerve fiber is reversed. Then it achieves the spike potential at plus 35 millivolt. Then it starts returning to regain its resting membrane potential. That phase is repolarization, fourth phase. Then fifth phase here, repolarization becomes slow due to the slow opening of the potassium channels. That phase is known as after depolarization. Then sixth phase is after hyperpolarization, where even after achieving the resting membrane potential, the membrane potential becomes more negative. This is due to the prolonged opening of the potassium channels. Now let us discuss the ionic basis of these phases. So in the first phase, that is the resting stage or the polarized state, as we yesterday discussed in the last video, that inside of the membrane is negative as compared to the outside of the membrane. So there is negativity inside and positivity outside, and we discussed the various reasons. One of the reason is sodium potassium pump, which makes the movement of 2 potassium ions inside and 3 sodium ions outside, creating the less positivity inside the cell membrane. Thus inside of the membrane is relatively negative. So this was the resting state. Now what happens in the depolarization? In depolarization, what we have, there is reversal of polarity. So outside of the membrane will now become negative and inside of the membrane will now become positive. So how would this happen? So there is reversal of polarity. Outside will become negative and inside will become positive. This is due to the huge influx of the sodium ions. So there is opening of the sodium channels. There will be the opening of sodium channels leading to the influx of the sodium ions, creating the positivity inside and negativity outside, and this is termed as depolarization. These sodium channels are voltage gated sodium channel. So on receiving the stimulus, there is opening of the sodium channel and there will be tremendous influx or the huge influx of the sodium ions. Tremendous influx of the sodium ions. This was about depolarization. Now in the third phase, that is the repolarization, what will happen? Now this polarity of the nerve fiber will try to regain the original state, that is the resting membrane state. So what will happen in this? In this phase, again the cell membrane will try to regain its original state. So again there will be positive outside and negative inside, and this is due to the opening of the potassium channels. So there will be opening of the पोटेशियम चैनल्स एंड देयर विल बी पोटेशियम इफ्लक्स. तो धीरे धीरे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हमारा मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर जाता जाएगा, लीडिंग टू द रीगेन ऑफ द ओरिजिनल स्टेट. सो दिस इज द रीपोलराइजेशन. तो ये जो आपको दिख रहा है कि फायरिंग लेवल आता है
उसके इमीडिएटली बाद डीपोलराइजेशन स्पाइक अचीव करती है। दिस इज बिकॉज ऑफ दी सोडियम चैनल का ट्रमेंडस इन्फ्लक्स। इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है सोडियम चैनल्स का कि फटाफट से पोलैरिटी अपना पॉजिटिव साइड पे अचीव हो जाती है, प्लस 35 मिली वोल्ट का एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। उसके बाद immediately it will start coming back, that is because of the efflux of the potassium channels, that is due to the opening of the potassium channels। potassium channels की वजह से ऐसा होगा। now what happens in after depolarization, फिर आफ्टर डीपोलराइजेशन में हमारे पास क्या होगा, इन दी आफ्टर डीपोलराइजेशन। सो आफ्टर डीपोलराइजेशन क्या है, ये वाला फेज है जहाँ पे ये जो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी है या फिर रिगेनिंग ऑफ पोलैरिटी टू द ओरिजिनल स्टेट है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेशियम की जो कंडक्शन है दैट इज स्लोड डाउन। पोटेशियम कंडक्शन इज स्लोड डाउन बिकॉज पोटेशियम चैनल्स जो हैं ये स्लोली ओपन होते हैं। पोटेशियम चैनल्स ओपन स्लोली, इसलिए पोटेशियम की जो यहाँ पे कंडक्शन है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, स्लो पोटेशियम इफ्लक्स होता है यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। तो आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन में क्या है, इवन दिस इज द फेज आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन दैट इवन आफ्टर द achieving of the resting membrane potential, the ionic composition of rest is not yet established. It becomes more negative because potassium channels have prolonged opening. उनको टाइम लगता है क्लोज होने में due to the slow closing or the prolonged opening of the potassium channels. तो धीरे धीरे पोटेशियम इफ्लक्स हो रहा था, लेकिन अभी वो चैनल्स बंद नहीं हुए, इसलिए थोड़ा थोड़ा पोटेशियम और बाहर जाता गया जब तक कि चैनल्स बंद नहीं हो रहे, इसलिए जो हमारा पोटेंशियल है वो और ज़्यादा नेगेटिव हो गया एज कंपेयर टू दी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। So this is about action potential and the ionic basis of the action potential। अब हम इन सारे आयनिक बेसिस को अगर समराइज कर लें आपके इजी रिमेम्बरिंग के लिए, सो सबसे पहले हमारे पास थी पोलराइज्ड स्टेट या फिर रेस्टिंग स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट में या फिर रेस्टिंग स्टेट में, तो इसके हमारे पास रीज़न थे, एक तो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, ठीक है, दूसरा रीज़न था कि पोटेशियम की जो परमेबिलिटी है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू दी सोडियम। तो ये दो तीन मेन रीजंस थे जिसकी वजह से हमारे पास ICF में नेगेटिव पोटेंशियल होता है और ECF में पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। फिर आती है डीपोलराइजेशन, जब हम स्टिमुलस अप्लाई करते हैं, सो नर्व फाइबर इज एक्साइटेड एंड देयर इज रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। सो हियर मेन रीजन इज सोडियम इन्फ्लक्स, दैट इज ड्यू टू दी ओपनिंग ऑफ दी सोडियम चैनल्स। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पे जो है जब डीपोलराइजेशन वाला फेज हो रहा है तो अंदर पॉजिटिव होना है। तो कैसे पॉजिटिव होगा, जब खूब सारा सोडियम अंदर आएगा तो सोडियम इन्फ्लक्स होगा, ओपनिंग ऑफ दी सोडियम चैनल्स होगी, ठीक है। रीपोलराइजेशन के वक्त क्या हो रहा है, अब वापस से अंदर हमें नेगेटिव क्रिएट करना है और बाहर पॉजिटिव क्रिएट करना है। तो वो कैसे होगा, सोडियम तो अंदर आ गया ना, अब सोडियम की क्या थी, परमेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू द पोटेशियम। पोटेशियम इज मोर परमेबल, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम इफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देयर विल बी ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम चैनल। सो दिस इज द कॉज ऑफ रीपोलराइजेशन। नेक्स्ट वी हैव आफ्टर डीपोलराइजेशन। सो आफ्टर डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, स्लो हो गया ये जो प्रोसेस था हमारा टू रिगेन इट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो स्लो डाउन हो गया बिकॉज ऑफ द स्लो कंडक्शन ऑफ द पोटेशियम, ठीक है। तो इस फेज में हमारे पास जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो स्लोली ओपन हो रहे हैं
और कंडक्शन ऑफ पोटेशियम स्लो हो रही है। देन आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन, अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव करने के बाद भी जो हमारा पोटेंशियल है वो और नेगेटिव की तरफ जा रहा है। दैट इज बिकॉज स्लो प्रोलॉन्ग्ड पोटेशियम इफ्लक्स, जो हमारे पोटेशियम चैनल्स हैं वो अभी क्लोज नहीं हो पाए, प्रोलॉन्ग्ड पोटेशियम इफ्लक्स चल रहा है विच कॉजेज द आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। सो आई होप यू आर क्लियर विद द एक्शन पोटेंशियल एंड विद द आयनिक बेसिस ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। सी, दो आयन्स का ही काम चल रहा है यहाँ पे, वन इज द सोडियम आयन, वन इज द पोटेशियम आयन। जहाँ पे सोडियम आयन जा रहा है वहाँ पे वो पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है, जहाँ पोटेशियम आयन है वहाँ पे लेस पॉजिटिविटी हो रही है। तो रेस्टिंग स्टेट में सोडियम कहाँ था, ECF में था, इसलिए ECF सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पॉजिटिविटी थी और सेल के अंदर नेगेटिविटी थी। डीपोलराइजेशन में अब रिवर्स होनी है पोलैरिटी, ICF को हमने पॉजिटिव करना है तो सोडियम आयन्स अंदर आएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएगा। रीपोलराइजेशन के वक्त क्या होना है, वापस से हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जाना है, मतलब वापस हमें बाहर पॉजिटिव करना है और अंदर नेगेटिव करना है। तो अब सोडियम की परमिबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू द पोटेशियम, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। तो क्या होगा, अब पोटेशियम जल्दी जल्दी बाहर जाना शुरू हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी जो हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ एक्शन पोटेंशियल वापस आने लगता है। अब आफ्टर डीपोलराइजेशन में क्या होगा, फिर उसके बाद पोटेशियम की कंडक्शन स्लो हो जाएगी इस फेज में, तो जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अचीव होने में थोड़ी सी देर लगेगी क्योंकि अब पोटेशियम स्लोली बाहर जा रहा है। लास्ट फेज में क्या हो रहा है, और ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, -70 मिली वोल्ट से भी नेगेटिव हो रहा है। क्यों हो रहा है, वैसे तो अब पोटेशियम चैनल्स बंद हो जानी चाहिए थे कि -70 मिली वोल्ट अचीव हो गया, बट जो पोटेशियम चैनल्स हैं दे आर स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड ओपनिंग है उनकी, स्लोली बंद होते हैं, स्लोली ओपन होते हैं और उनकी प्रोलॉन्ग्ड ओपनिंग की वजह से हल्का फुल्का पोटेशियम इफ्लक्स चलता रहता है, इसलिए जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और नेगेटिव की तरफ जा रहा है। एंड जब इस पॉइंट पे आके सारे पोटेशियम चैनल्स बंद हो जाएंगे धीरे धीरे, देन वी अचीव द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। So this graph, this action potential, ionic basis of action potential is very very important। ये आपको समझ आ गया तो आपको नर्व फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी एंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आता ही आता है। सो आई होप यू आर क्लियर विद द मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स एंड द एक्शन पोटेंशियल। थोड़ा सा रह गया, वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो डिफरेंसेस बिटवीन द एक्शन पोटेंशियल एंड द ग्रेडेड पोटेंशियल। So we'll try to cover that in the next video. So I hope you like my video. Please comment below in the comment section if you have any doubts, we can clear that. And please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.